Hi guys, welcome to our YouTube channel Streamline Education. I am Chetan and today we are going to see theorem of areas of similar triangles and practice set 1.4. So stay tuned. Now let us see the theorem of areas of similar triangles. Now what is this theorem? When two triangles are similar, then the ratio of their areas is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. क्या दिया है कि when two triangles are similar, then the ratio of their areas is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. इसका मतलब कि अगर ABC triangle है and it is similar to triangle PQR. Okay, if triangle ABC is similar to triangle PQR, तो according to this theorem, the ratio of their areas, यानी area of triangle ABC upon area of triangle PQR should be equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. अब समझो corresponding side AB का हम लेंगे PQ, तो ये हो जाएगा AB upon PQ, लेकिन what is it? It is the square of their corresponding sides, यानी कि AB square upon PQ square. Similarly, इस ट्रायंगल में BC लिया तो यहाँ पे लेना पड़ेगा QR, so that will be equal to BC square upon QR square, and that will be equal to the remaining corresponding sides, that is AC and PR, AC square upon PR square. So what is this theorem? If two triangles are similar, then the ratio of their areas is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. So this is this theorem, and now we are going to see the proof of this theorem. चलो अभी दिए हैं दो triangles ABC PQR and it is given that AD is perpendicular to BC and PS is perpendicular to QR. And we have learned one thing, the line that is perpendicular to the base is the height of that triangle. तो इस ट्रायंगल में AD उसकी हाइट है और PS PQR की हाइट है. So let us see what is given. Triangle ABC similar to PQR, AD perpendicular to BC and PS perpendicular to QR. And what we have to prove, that area of triangle ABC upon area of triangle PQR equals to AB square upon PQ square equals to BC square upon QR square equals to AC square upon PR square. Means the ratio of areas equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. So let us start the proof now. So we will be writing the proof. First, what we have to do? We have to find the ratio of areas of triangle ABC and PQR. Okay. So I am going to take two triangles ABC and PQR. In triangle ABC and triangle PQR, area of triangle ABC upon area of triangle PQR. We have learned earlier that the ratio of the areas of triangles is equal to the ratio of the product of their corresponding bases and heights. Okay, bases और heights का प्रोडक्ट रहता है. तो ट्रायंगल ABC में बेस क्या है BC और हाइट क्या है AD, तो ये क्या हो जाएगा BC into AD. Similarly, PQR में QR is the base and PS is the height. So I will be writing base, that is QR into PS. Now let us name this as equation number 1. अब हमको और दो ट्रायंगल्स लेने हैं and we have to prove that these two triangles are similar to each other. देखो पहले हम लेंगे ये वाला ABD और PQS. Okay, now we are going to take this left hand side वाले triangles. So in triangle ABD and triangle PQS, अब इन दोनों का हमको सिमिलर प्रूफ करना है. तो हमारे पास अगर टू पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आ गए तो वी कैन डायरेक्टली से दैट द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी. तो चलो यहां देखो
ये दो ट्राइंगल्स में ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ऑलरेडी गिवन, एंड इफ यू लुक एट दिस एंगल both of them are of 90 degrees. Therefore these two angles will also be common. तो चलो लिखते हैं एंगल ABD is equal to angle PQS. Okay, that is already given. And angle ADB is equal to angle PSQ is equal to angle PSQ and both are of 90 degrees. अब दोनों 90 डिग्रीज के हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. सो आई कैन डायरेक्टली राइट नाउ देयरफॉर ट्रायंगल ADB is similar to triangle PSQ. ओके, और इसमें टेस्ट क्या हो जाएगा, दो एंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, so that will be angle test of similarity. Okay, so this is angle test of similarity से ADB is similar to PSQ. अब when the triangles are similar, we know that their corresponding sides are in the same proportion. तो अगर corresponding sides in the same proportion है तो एक चीज हम बोल सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ AB एक साइड तो उसके साथ कौन सी लेनी पड़ेगी, PQ. ओके, और अगर मैं AD लेता हूं तो उसके साथ मुझे क्या लेना पड़ेगा, PS. ओके, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, therefore AB upon PQ will be equal to AD upon PS. ओके, ये हमको मिल गया बिकॉज these two triangles are similar to each other. अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2. ओके, लेट अस नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 2. अब इसके बाद हमको तो लेकिन पता है ऑलरेडी कि ABC ट्रायंगल इज सिमिलर टू PQR. ये दो ट्रायंगल्स ऑलरेडी सिमिलर है, ये दिया गया है. सो आई विल राइट हियर बट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी इन द सेम प्रोपोर्शन. तो अगर मैं AB लेता हूं तो उसके साथ आएगा PQ. Therefore AB upon PQ will be equal to BC upon QR and that will be equal to AC upon PR. AC upon PR. अब इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3. Let us name this as इक्वेशन नंबर 3. चलो, अभी ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो मिला है उससे हमको एंड में क्या मिलता है वो चेक करते हैं. तो सेकंड इक्वेशन को लिखता हूं फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम 2 and 3. अब AB upon PQ is equal to AD upon PS. Okay, and third से AB upon PQ is also equal to BC upon QR and equals to AC upon PR. चलो, इसका मतलब क्या हो गया, देखो जो AD upon PS है मैं दिखाता हूं स्टेप बाय स्टेप. AD upon जो PS है that is equal to AB upon PQ. ठीक है, पहला. लेकिन AB upon PQ is also equal to BC upon QR. ओके, क्या है, AB upon PQ is also equal to BC upon QR. AB upon PQ equals to BC upon QR. So AB upon PQ की जगह मैं लिख सकता हूं BC and BC upon QR. तो AD upon PS is also equal to BC upon QR. अब थर्ड में देखो, AB upon PQ that is also equal to AC upon PR. तो जहां पे AB upon PQ है वहां पे मैं लिख सकता हूं AC upon PR. AD upon PS is equal to AC upon PR. Now इससे हमको एक फाइनल रिलेशन क्या मिल जाएगा कि जो AD upon PS है, AD upon PS is equal to AB upon PQ and that is equal to BC upon QR and that is equal to AC upon PR. यहाँ पे AB upon PQ को इक्वल है AD upon PS, तो ये सब इक्वेशन से हमको ये रिलेशन मिल जाता है
कि AD upon PS is equal to AB upon PQ, AB upon PQ, BC upon QR and AC upon PR। तो इससे हम अब क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अब फिर से अब आएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या था हमारा? ट्राइंगल ABC अपॉन ट्राइंगल PQR। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इंटू AD अपॉन PS, इंटू AD अपॉन PS। But now look at this equation. AD upon PS is also equal to AD upon PS is also equal to BC upon QR. So AD upon PS के जगह मैं फिर से क्या लिख सकता हूं? BC upon QR। यहां लिख देता हूं BC upon QR, ये वाला जो है, into अब AD upon PS is also equal to BC upon QR, तो यहां पे लिख दूंगा BC upon QR। तो ये बन जाएगा BC स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। सो रेशियो ऑफ द एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये एक करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर मिल गया। सिमिलरली हम बाकी इसका भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? अब एरिया ऑफ दिस अपॉन एरिया ऑफ दिस इक्वल्स टू BC अपॉन QR। अब BC अपॉन QR की जगह पे मैं लिख सकता हूं AB अपॉन PQ, राइट? BC अपॉन QR की जगह लिख सकता हूं AB अपॉन PQ। क्यों? क्योंकि BC अपॉन QR इज ऑल्सो इक्वल टू AB अपॉन PQ। अब देखो AD अपॉन PS, AD अपॉन PS इज ऑल्सो इक्वल टू AB अपॉन PQ, यानी कि यहां पे भी लिख सकता हूं इंटू AB अपॉन PQ, यानी कि AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। अब सिमिलरली अब थर्ड साइड कौन सी बची है हमारी? BC हो गया। अब कौन सा बचा हुआ है? AC हुआ है, AC नहीं हुआ है, तो AC लेते हैं। अब BC अपॉन QR, BC अपॉन QR इज ऑल्सो इक्वल टू AC अपॉन PR, ओके। तो यहां पे देखो BC अपॉन QR की मैं जगह लिख सकता हूं AC अपॉन PR। अब फिर से AD अपॉन PS, लेकिन AD अपॉन PS इज ऑल्सो इक्वल टू AC अपॉन PR, तो यहां पे लिख सकता हूं मैं इंटू AC अपॉन PR, दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। तो ये सबसे हमको क्या मिल गया कि देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ओके। अब यहां पे लिख देता हूं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू, यहां पे देखो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। सो व्हाट वी गॉट? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल टू the ratio of the squares of their corresponding sides। So ये था इसका थ्योरम। अब इससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। Let us start practice set 1.4। The first question is ratio of corresponding sides of two similar triangles is 3:5 and you have to find the ratio of their areas। Now in this question the triangles have not been given, means the names of the triangles have not been given, so we have to assume two triangles। So I can say that in the solution we can write assume two similar triangles। So we will assume triangle ABC is similar to triangle XYZ and we have to find the ratio of these two areas of these two triangles। And what we have learned that the ratio of the areas is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। तो यही चीज यहाँ पे हमको यूज करना है। अब ऐसे क्वेश्चंस में जब दिया नहीं है कि ट्राइंगल्स कैसे है, बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो वी हैव टू स्पेसिफाई एंड वी हैव टू से व्हिच ट्राइंगल इज बिगर एंड व्हिच वन इज स्मॉलर। नाउ लुक एट द रेशियो
the ratio is 3:5. So we will take the first triangle to be smaller and the second triangle to be larger. So I will write here triangle ABC is a smaller triangle, and triangle XYZ is a larger triangle. It is a larger triangle. Now, why is it necessary to specify smaller and larger triangles? This is because you can get a question like find the corresponding side of the larger triangle or find the corresponding side of the smaller triangle. इसीलिए जरूरी हो जाता है larger triangle और smaller triangle कौन सा है वो बताना. चलो अभी दो triangles similar है, ओके अब उनका रेशियो ऑफ एरियाज निकालना है. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ will be equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. Okay, it will be equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. अब corresponding sides का रेशियो ऑलरेडी दिया है, that is 3:5, यानी कि 3/5, लेकिन उनका लेना है हमको स्क्वायर. सो ये हो जाएगा 3/5². फिर से रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू, जब दो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. अब करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर लेना है यहाँ पे, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है ऑलरेडी दिया है 3:5, लेकिन उनका लेना है हमको स्क्वायर. सो इट विल बी 3²/5². सो दिस विल बी इक्वल टू, फर्स्ट वी विल राइट द रीजन, दैट इज theorem of areas of similar triangles. Okay, theorem of areas of similar triangles. ये लिखना बहुत जरूरी है. You have to write the reasons every time. Therefore, now area of triangle ABC upon area of triangle XYZ will be how much? 3² is 9 and 5² is 25. So what is the ratio of their areas? The ratio of the areas is 9/25. So it was a very simple question. Now let us solve the second question. If triangle ABC is similar to PQR and AB is to PQ is 2:3, यानी कि ये क्या है? रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स. ये देखो AB और PQ ये हो गए करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो उनका रेशियो भी दिया है 2:3. Then fill in the blanks. Area of triangle ABC upon area of triangle PQR. We know that the areas of two similar triangles are equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. अब यहाँ पे ऊपर AB दिया है, तो उसका corresponding side क्या हो जाएगा? AB का corresponding side is PQ. तो obviously यहाँ पे हम लिखेंगे PQ का square. And this is equal to, ये रेशियो दिया है 2/3 और हमको लेना पड़ता है उनका स्क्वायर, therefore 2²/3². अब 2² यानी कि 4 होता है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होता है 9. सो इससे ज्यादा सिंपल तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, इसलिए मैं कुछ ज्यादा इस पे एक्सप्लेन नहीं करूंगा. नाउ लेट अस स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन. सभी क्वेश्चंस वैसे इजी है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है. अब थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR and area of triangle ABC is 80 and area of triangle PQR is 125. दोनों के एरियाज दिए हैं. Then you have to fill in the blanks. अब देखो पहला है रेशियो ऑफ एरियाज निकालना. अब रेशियो ऑफ एरियाज अगर निकालना है तो we know that it is equal to the square of the corresponding sides. यानी corresponding sides जो भी लेंगे हम उनका स्क्वायर होता है रेशियो ऑफ एरियाज. ओके, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर इसमें फिल ब्लैंक्स को फिल कर लेते हैं. अब दो ट्रायंगल्स लिए हैं ABC एंड PQR. तो अगर हमने ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR लिया, तो इट विल बी इक्वल टू, ऑलरेडी दिया हुआ है 80/125. ओके, इट इज 80/125. अब जो रेशियो रहता है
इट शुड बी इन द रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म पता है, जब तक डिवाइड नहीं होता है, जब तक डिवाइड होते रहता है तब तक उसको डिवाइड करते रहना है। ओके, अब देखो दोनों भी बोथ द नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, सो आई विल डिवाइड देम बाय 5। 5 1s are 5 and 5 6s are 30, so 16 5 into 16 will be 80 and 5 2s are 10 and 5 5s are 25. So I get area of triangle ABC upon area of triangle PQR equals to 16 upon 25. Let us give it as equation number 1. But we also know that area of triangle ABC upon area of triangle PQR is also equal to the square of their corresponding sides. Okay, it is equal to the square of their corresponding sides. अब मैं अगर यहाँ पे हमको क्वेश्चन में AB और PQ लिया है तो हम ऑब्वियसली उसी साइड का स्क्वायर लेंगे, AB एंड PQ. सो यहाँ पे हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. ये क्यों लिखा? बिकॉज वी हैव स्टडीड दैट रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. अब देखो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2. अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ABC अपॉन PQR इज इक्वल टू 16 अपॉन 25 और यहाँ पर भी ABC अपॉन PQR इज AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उनके राइट हैंड साइड ऑब्वियसली इक्वल हो जाते हैं. तो फ्रॉम 1 and 2 we will get, from 1 and 2 we will get that AB square upon PQ square is also equal to 16 upon 25. या फिर 16 upon 25 is also equal to AB square upon PQ square. अब अगर मुझे इनका स्क्वायर साइन निकालना है तो मुझे जो आगे है उनका लेना पड़ता है स्क्वायर रूट. सो therefore AB upon PQ will be equal to the square root of 16 upon 25. अब 16 is a perfect square, इसका स्क्वायर है 4 का, तो square root of 16 is 4 and square root of 25 is 5. ओके, तो हमको निकालना था AB by PQ, तो हमको मिल गया AB upon PQ. Now just fill in the blanks. ओके, ट्रायंगल ABC के साथ किसका हमने ट्रायंगल लिया था? कौन सा ट्रायंगल? PQR. तो पहले ब्लैंक में आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. ओके, अब 80 by 125 इसका रिड्यूस फॉर्म हो गया 16 by 25 और एंड दैट इज इक्वल टू 16 by 25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर. तो हमको सिर्फ चाहिए AB अपॉन PQ, इसलिए हमने सामने वाले का कर दिया स्क्वायर रूट एंड देयरफॉर वी गेट 4 अपॉन 5 एंड देयरफॉर AB अपॉन PQ इज 4 अपॉन 5. तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था. Now let us start question number 4. Triangle LMN is similar to triangle PQR and 9 times the area of triangle PQR is equal to 16 times the area of triangle LMN. If QR equals to 20 then find MN. तो इसमें हमको corresponding side find out करनी है. Okay? कि MN जो करस्पॉन्डिंग साइड है उसका हमको लेंथ फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए पहले हम गिवन लिख लेते हैं जो जो चीजें दी गई है इसमें. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. देन QR इज इक्वल टू 20 एंड दिस वन 9 टाइम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to 16 times the area of triangle LMN. अब दो ट्रायंगल्स दिए हैं, अगर हम इन दोनों का if you want to find out the ratio of the areas then how will I find out? Area of triangle PQ LMN upon area of triangle PQR. ओके, ये दोनों का अगर रेशियो निकालना है एरियाज का तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. ओके, तो अब हम इस इक्वेशन का यूज करने वाले फॉर द सेम. नाउ दिस इज सिंस, अगेन आई विल राइट दिस, सिंस 9 into area of triangle PQR is equal to 16 into area of triangle LMN. हमको चाहिए ये दोनों का रेशियो ऑफ एरियाज, तो ये आएगा LMN अपॉन PQR. तो LMN है, मुझे PQR को वहां पे ले जाना है.
सो ये क्या हो जाएगा 9 इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ओके, अब मैंने इस PQR को यहां पे पहले ले लिया। अब मैं क्या करूंगा कि ये 16 को इधर लेके आ जाऊंगा तो उनका रेशियो हमको मिल जाएगा। अब ये 9 वैसे रख दिया और 16 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, तो जो न्यूमरेटर में इट गोज टू द डिनोमिनेटर। सो 16 विल कम डाउन, इट विल बी 9 अपॉन 16 इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। अब इसको ठीक से लिख लेंगे, पहले ये लिख लेते हैं लेफ्ट राइट हैंड साइड, एरिया देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 9 अपॉन 16। चलो ये हमको रेशियो ऑफ एरियाज मिल गया उनका। अब इन्होंने दिया है QR इक्वल्स टू 20 एंड देन फाइंड MN। अब ये जो नाम दिया हुआ है LMN सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, इट इज अकॉर्डिंग टू 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। ओके, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के हिसाब से दिया हुआ है। तो QR अगर हमने साइड ली तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा हो जाएगा, ऑब्वियसली MN। और हमने एक चीज पढ़ी है, क्या पढ़ी है कि पहले तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। हमने जो चीज पढ़ी है वो है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR will be equal to the ratio of the squares of their corresponding sides। अब कौन से करस्पॉन्डिंग साइड लेना है अपने को, MN एंड QR। ओके, तो पहले ट्राइंगल LMN लिया है तो हम लेंगे MN और फिर QR। सो ये क्या हो जाएगा, MN का स्क्वायर अपॉन QR का स्क्वायर। तो इसको भी नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम 1 and 2 you can see that left hand sides are equal and therefore the right hand side will always obviously be equal। So I can write from 1 and 2, from 1 and 2। यहाँ पे देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन PQR इक्वल्स टू 9/16। यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN अपॉन ट्राइंगल PQR इज MN स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। सो इनके राइट हैंड साइड ऑब्वियसली इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 9/16, therefore 9/16 will be equal to MN square upon QR square। MN square upon QR square। या फिर लिख सकते हैं ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ला लेते हैं, MN square upon QR square equals to 9/16। Now if I want to remove the squares, I have to take the square root on the right hand side, right? तो अगर मुझे MN अपॉन QR चाहिए तो आई शुड टेक द स्क्वायर रूट ऑफ 9/16। ये जनरली लिखना नहीं पड़ता है, वो डायरेक्टली हमको आंसर लिखना पड़ता है। ओके, देयरफॉर MN अपॉन QR क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। ओके, अब लेकिन एक चीज हमको दी है कि QR इज 20। ओके, QR का लेंथ ऑलरेडी दिया है, ओके, but QR is 20। So QR की जगह पे हम 20 लिख देंगे, right? Therefore MN upon 20 equals to 3/4। Okay? MN upon 20 equals to 3/4। Therefore MN कितना आ जाएगा, ये 20 चला जाएगा ऊपर, तो ये बनेगा 3 into 20/4। अब 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो हमारा लेंथ कितना आ गया, therefore MN is equal to 15। अब इनका कुछ यूनिट नहीं दिया है तो we will write just 15 units। Let's move on to the next question। Now let us solve question number 5। Areas of two similar triangles are 225 square centimeters and 81 square centimeters। If a side of the smaller triangle is 12 centimeters, then find the corresponding side of the bigger triangle।
दो ट्रायंगल्स दिए, वन ऑफ देम इज अ लार्जर ट्रायंगल, वन ऑफ देम इज अ स्मॉलर ट्रायंगल। ऑब्वियसली 225 जिसका एरिया है वो लार्जर ट्रायंगल है और 81 जिसका एरिया है वो स्मॉलर ट्रायंगल है। तो जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसका एक साइड का लेंथ दिया है 12 सेंटीमीटर्स। तो ये जो साइड है जिसका लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ग्रेटर ट्रायंगल हमको फाइंड आउट करना है। स्मॉलर ट्रायंगल का साइड दिया है मेजरमेंट, हमको बड़े ट्रायंगल का इसका करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ ढूंढ के निकालना है। अब ट्रायंगल्स के नाम नहीं दिए, तो फर्स्ट वी हैव टू अज्यूम द टू सिमिलर ट्रायंगल्स। सो लेट अस राइट डाउन द सॉल्यूशन फॉर दिस। फर्स्ट वी हैव टू अज्यूम ट्रायंगल्स। अज्यूम ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR। अब हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कौन सा लार्जर ट्रायंगल है और कौन सा छोटा ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC is the larger triangle. Triangle ABC is the larger triangle and triangle PQR is the smaller triangle. It is the smaller triangle. चलो अभी हम ये दो जो ट्रायंगल्स दिए उनका रेशियो ऑफ एरियाज निकालना है। ओके, सो रेशियो ऑफ एरियाज क्या रहता है? एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल डिवाइडेड बाय दिस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। सो आई कैन राइट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये हो गया उनका रेशियो ऑफ एरियाज एंड वी नो दैट द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल to the squares of their corresponding sides, equal to the squares of their corresponding sides। अब कोई भी एक साइड ले लो, ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ओके, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर भी लिख सकते हो और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर भी लिख सकते हो। नाउ राइट डाउन द रीजन फॉर इट। व्हाई? थ्योरम ऑफ, व्हाट इज द थ्योरम? थ्योरम ऑफ areas of similar triangles। okay, theorem of areas of similar triangles। so अब इसमें से एक साइड हमको दी है 12 जो कि है स्मॉलर साइड का लेंथ है वो। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है? इट इज 225 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। सो आई कैन राइट हियर देयरफॉर area of triangle ABC is 225 square centimeters upon area of triangle PQR is 81 centimeters is equal to AB square। AB is the side of the larger triangle, okay, so AB square ही हमको ढूंढ के निकालना है and PQ is the side of the smaller triangle जिसका लेंथ दिया है 12 centimeters। So this will be equal to 12 square। Okay, now we get therefore AB square upon 12 square equals to 225 upon 81। Okay, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर्स है, अगर ये स्क्वायर्स निकालना है तो we should take the square root on the right hand side। Okay, तो क्या बन जाएगा ये? Therefore AB हमने इसका स्क्वायर निकाल दिया और 12 का स्क्वायर भी निकाल दिया तो 12 मिल जाएगा, लेकिन आगे वाले का करना पड़ेगा स्क्वायर रूट। 225 किसका स्क्वायर है? 15 का। सो स्क्वायर रूट ऑफ 225 इज 15 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9। राइट, नाउ आई विल सॉल्व इट हियर। AB अपॉन 12 कितना आया? AB अपॉन 12 इक्वल्स टू 15 अपॉन 9। वी हैव टू फाइंड AB, therefore AB equals to 15 into 12 upon 9। चलो जो डिवाइड होता है डिवाइड कर लो। 3 4s are 12, 3 3s are 9 and 3 5s are 15। So you get therefore AB equals to 5 4s are is 20 and the unit is centimeter। So how will you conclude this answer? Therefore the corresponding side of the bigger triangle, therefore the corresponding side of bigger triangle that is AB equals to
20 सेंटीमीटर। सो ये भी आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से कर लेना। नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल ABC and triangle DEF are equilateral triangles. If area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to 1:2, then and AB equals to 4, then you have to find D. अब एक चीज दी गई है कि ट्राइंगल ABC and triangle DEF are equilateral triangles. We know that equilateral triangles are always similar. क्यों होते हैं? क्योंकि उनके corresponding angles congruent रहते हैं. Each angle is of 60 degrees. तो सबसे पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF as equilateral triangles are always similar. So let us write the solution. Triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. Okay, they are equilateral triangles. And therefore I will say that triangle ABC is similar to triangle DEF. And what will be the reason? Corresponding angles are congruent. Okay, corresponding angles are congruent. दोनों भी इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं. दैट इज ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्रीज. ईच एंगल इज ऑफ 60 डिग्रीज. ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हर एक एंगल 60 डिग्रीज का होता है. वो चाहे कितना बड़ा हो या छोटा हो, उसका हर एक एंगल जो रहता है इट इज ऑफ 60 डिग्रीज. So obviously when the corresponding angles are congruent, then ABC is similar to DEF by which test? Obviously by angle test of similarity. Okay, तो ये लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूं फिर से angle test of similarity से ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाते हैं. चलो, अब दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए तो we know that the ratio of their areas is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides. तो अब मैं लिख सकता हूं area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides. अब corresponding side AB DE हो सकते हैं, ओके, BC EF हो सकते हैं, या तो AC DF है. तो हमको एक ही लेना है, लेकिन कौन सी लेना है? तो जस्ट रेफर द क्वेश्चन. AB दिया हुआ है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी? DE. तो आई विल राइट इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर. एंड डोंट फॉरगेट टू राइट द रीजन व्हाई. थ्योरम रेशियो ऑफ areas of similar triangles. Okay, theorem of the ratio of areas of similar triangles. चलो, अभी ABC अपॉन DEF का रेशियो तो ऑलरेडी दिया है, दैट इज 1:2. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो 1:2 है, यानी कि 1/2 है. तो इन दोनों की जगह पे उनका रेशियो लिख दूंगा, दैट इज 1/2 एंड दैट इज इक्वल टू AB का स्क्वायर. क्या AB दिया है 4, सो इट विल बी 4 स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर एंड वी हैव टू फाइंड DE. ओके, सो DE स्क्वायर को ऊपर लेके जाता हूं, 2 को उधर लेके चले जाता हूं. ओके, सो ये क्या हो जाएगा? या तो फिर एक सिंपल सा इसको सॉल्यूशन है. अगर हमको इनका स्क्वायर निकालना है तो उसके अपोजिट साइड वाले का क्या लेना पड़ता है? स्क्वायर रूट. ओके, तो देखो दोनों तरीके से मैं दिखाऊंगा. पहले DE स्क्वायर को इधर ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई. DE स्क्वायर इंटू 1 DE स्क्वायर एंड इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू 2. ओके, 4 स्क्वायर इंटू 2. अब देखो D क्या हो जाएगा? इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इंटू 2. अब किसी भी अगर चीज का स्क्वायर है इनसाइड द स्क्वायर रूट, अगर आपको बोला कि a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालो तो बहुत सिंपल सा आंसर रहता है a, राइट? तो
अगर मैंने पूछा कि स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर का आंसर क्या है, तो ऑब्वियसली इट विल बी 5, क्योंकि 5 स्क्वायर क्या होता है 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज अगेन 5, तो सिर्फ उसका स्क्वायर निकल जाएगा। अब यहां पे देखो 4 के ऊपर स्क्वायर है, तो अगर इसको स्क्वायर रूट के बाहर आना है तो इट विल लूज इट्स पावर, दैट इज 2। तो ये क्या बनेगा, DE इक्वल्स टू 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है 4 और 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए उसका स्क्वायर रूट हम प्रॉपर निकाल नहीं सकते। सो मैं यहां पे लिख दूंगा 4 रूट 2। 2 बाहर नहीं आ सकता, वो अंदर ही रहेगा क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन 4 स्क्वायर यानी 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, तो ये आ जाएगा 4 रूट 2। अब दूसरी चीज जो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वो एक है और एक तरीका है उसको सॉल्व करने का। अब देखो फिर से लिखूंगा 4 स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड वाला पहले लिख देता हूं, 4 स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। अगर मुझे इनका स्क्वायर निकालना है तो मुझे आगे वाले का करना पड़ेगा स्क्वायर। Therefore 4 upon DE will be equal to square root of 1 upon 2। अब 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ओके, तो ये रूट्स के बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा 4 अपॉन DE इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट प्रॉपर स्क्वायर रूट हम या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहे। तो DE चला जाएगा इधर और रूट 2 आ जाएगा इधर, तो क्या बनेगा ये 4 इंटू रूट 2 दैट इज 4 रूट 2 इक्वल्स टू 1 इंटू DE दैट इज DE। Therefore you get DE equals to 4 रूट 2। अब इनका यूनिट्स नहीं दिया है तो हम लिख देंगे दैट इज इक्वल टू 4 रूट 2 यूनिट्स। ओके, तो दोनों तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, whichever you find easy, follow that method। Now let us solve the last question of this exercise. Segment PQ is parallel to segment DE. Segment PQ, it is parallel to segment DE, and area of triangle PQF is 20 units. Okay, you can see this triangle, उसका area है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, area of triangle PQF equals to 20 units. Okay, then PF equals to 2 times DP. ये जो सेगमेंट है इट इज 2 times the length of DP. Then we have to find the area of quadrilateral DPQE. हमको क्या निकालना है इस प्रॉब्लम में, एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलैटरल DPQE, and we have to do this by completing the activity. अब एक चीज देखो, इसमें यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं, एक है DEF और दूसरा है PQF। अगर हमको इसका एरिया निकालना है क्वाड्रिलैटरल DPQE का, देन हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड वी आल्सो नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ PQF। इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 20 दिया है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF में से इतना एरिया माइनस कर देते हैं तो हमको मिलेगा ये बचा हुआ एरिया जो हमको ढूंढ के निकालना है। ओके, सो हमारा मेन हमको क्या करना है, DEF का एरिया निकालना है और उसमें से 20 माइनस कर देंगे तो हमको मिल जाएगा क्वाड्रिलैटरल DPQE का एरिया। अब और क्या दिया है उन्होंने दिया है कि लेट अस अज्यूम DP इक्वल्स टू x। ओके, DP जो डिस्टेंस है इक्वल्स टू x, और ऑलरेडी दिया है कि PF इज 2 times DP। ओके, PF इज 2 times DP and DP is x, तो PF क्या बन जाएगा 2 times x। ओके, because PF is 2 times DP and DP is x। ओके, चलो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। Now DF जो सेगमेंट है, ओके, if you look at this DF segment, it is addition of 2 segments, that is DP plus PF। DP plus PF is equal to this complete segment, that is DF। तो बहुत सिंपल है, DF equals to DP plus PF। ओके, DP plus PF। अब उनका हमको जो मेजरमेंट दिए वो ऐड कर देने हैं। DP का मेजरमेंट हमने लिया है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x, और जो PF का मेजरमेंट है दैट इज
2x. So 2x plus x is equal to 3x. Now we are going to take two triangles FDE and FPQ. FDE बड़ा ट्रायंगल and FPQ छोटा ट्रायंगल. And अब इनको फिल करना है हमको. एंगल FDE, एंगल FDE, FDE कौन सा एंगल है? FDE, ये वाला एंगल है FDE. Now this will be congruent to which angle? Okay, this will be congruent to this angle. Why? अब यहाँ पे इमेजिनेशन काम आएगा. ये दो लाइंस पैरेलल है, राइट? एंड कंसीडर दिस एज द ट्रांसवर्सल. यहाँ पे निकालता हूं मैं. ये दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है, यानी कि DE, ये है DE लाइन और ये है PQ. ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है and this one is the transversal, a line that cuts two or more lines. So obviously this angle will be equal to this angle. Okay, corresponding angles के लिए F structure देखना, या तो लाइंस के ऊपर या तो लाइंस के नीचे, दोनों भी एंगल्स होंगे. तो ये जो एंगल है FDE, FDE, FDE will be equal to FPQ because these are corresponding angles. तो यहां पे लिख दूंगा FPQ. ओके, अब सेकंड पेयर भी जो है इट इज ऑफ corresponding angles. अब हमने वो साइड कर लिया था, अब ये नीचे के साइड का लेंगे. एंगल FED, FED. अब पहले हमने इसको ट्रांसवर्सल लिया था, अब इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल लेंगे. ओके, सो ऑब्वियसली कौन सा एंगल्स इक्वल हो जाएंगे? दिस एंड दिस. ओके, सो एंगल FED, एंगल FED is equal to angle FQP. Okay, is equal to angle FQ and P. Why? Again, these are the corresponding angles. पहले लिया था ट्रांसवर्सल DF, अभी सेकंड में लिया ट्रांसवर्सल EF, और दो पैरेलल लाइंस कौन से? DE पैरेलल टू PQ. चलो, अभी we got that these two triangles are similar. Obviously दो एंगल्स उनके हमको congruent मिल गए, तो these two triangles will be similar by angle test of similarity. अब एंगल सिमिलर हो गए, then we can say that the ratio of their areas is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. Okay, it is equal to the ratio of the squares of their corresponding sides. तो अब हम कौन से साइड का स्क्वायर लेंगे? You have to decide. अब हमको क्या क्या दिया था उसमें? हमको PF है, ओके, और हमारे पास DP है. ओके, लेकिन ये DP इसका है, PF इसका है. अगर हम ट्राइंगल FDE लेंगे तो उसका पूरा मेजरमेंट होगा DF, और उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड रहेगा दैट विल बी PF. DEF बड़ा ट्राइंगल है, उसका करस्पॉन्डिंग, उसका एक साइड हो गया DF, एंड PQF छोटा ट्राइंगल है, उसका करस्पॉन्डिंग साइड होगा PF. तो यहां पे क्या आएगा? इक्वल्स टू इसमें जो करस्पॉन्डिंग साइड लेने वाले हैं, हम लेने वाले FD एंड FP. Why? Because FD का मेजरमेंट दिया है, राइट? FD is 2x plus x, that is 3x. Okay, and FP is this, that is equal to 2x. अब इनके मेजरमेंट्स हमको मालूम है, इसलिए हम रेशियो ऑफ दीज साइड्स लेने वाले हैं. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ is equal to the ratio of the squares of the corresponding sides. यानी कि FD का स्क्वायर और FD को corresponding साइड हो गई FP, that is FP का स्क्वायर. तो FD हमको पहले निकाल चुके थे हम. FD यानी कि DF, that is equal to 3x, तो यहां पे हो गया 3x का स्क्वायर, और FP 2x था, FP is 2x, तो उसके नीचे लिख देंगे 2x का स्क्वायर. अब 3x का होल स्क्वायर यानी कितना आता है? 9x स्क्वायर, एंड 2x का होल स्क्वायर यानी आता है 4x स्क्वायर. तो x स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा सिर्फ 9/4. चलो, अब यहां पे मिल गया. अभी देखते हैं क्या करना है. देन एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE इज 9/4 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ. ये इक्वेशन हमको इससे मिला है. कैसे?
एरिया ऑफ एफ डी वैसे ही रखा है और एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू को लेके चले गए न्यूमरेटर में। ओके, जब कोई इक्वेशन में कोई एक टर्म साइड चेंज करता है तो न्यूमरेटर बिकम्स डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू राइट हैंड साइड पे आ जाएगा एंड दैट विल बिकम 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। चलो 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। एफ पी क्यू का एरिया दिया है दैट इज 20 यूनिट्स, तो मैं यहां लिखूंगा इंटू 20। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, तो एफ पी क्यू का एरिया है 20। अब हमको पता है कि 4 5 इज 20, यहां पे मैं रफ में करता हूं, दिस इज 9/4 इंटू 20। ओके, तो ये हो जाएगा 4 5 20 and here it will be 9 into 5 that is 45 square units. Okay, यहाँ पे यूनिट नहीं दिया है तो we can write 45 square units. अब हमको मिल गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी। ओके, जैसे पहले बताया था हमको अगर डी पी क्यू ई का एरिया निकालना है क्वाड्रिलैटरल का, तो हमको इस बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या है, एफ डी ई है, जो हमको मिला है 45 स्क्वायर यूनिट्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा 45 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, और एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू ऑलरेडी गिवन है 20 यूनिट्स। तो 45 में से 20 गए तो रिमेनिंग विल बी 25। सो 25 स्क्वायर यूनिट्स will be the area of quadrilateral DPQE. So with this we end this exercise। बहुत ही सिंपल सा था। क्वेश्चंस और थ्योरम्स अच्छे से रिवाइज करते रहो ताकि प्रैक्टिस में रहो, क्योंकि थोड़े दिन बाद हम सब भूल जाते हैं।